Now we can start the meeting. We can start the session. So, Namaste, Assalamu alaikum sabhi ko. My name is Pranav Mokashi from Bangalore. I have been part of this SRK Fans Association Bangalore since a long time. Our association conducts many activities and events to create general awareness among the society. Since this pandemic situation has impacted our lives, we have decided to conduct this event on a digital platform. This purpose, we'll be having this discussion to create a general awareness among the public as to how they can overcome the coronavirus without panicking, with the right precautions, right treatments, and right system. We want to help people get information on how to tackle the challenge of COVID-19. No right or wrong answers. Is certainly no right or wrong answers to any of the questions I would be asking. Either I'll be interesting to hear your personal experience and the audience. Okay. So first of all, we'll be having a warm up sessions. So I just wanted to introduce everyone. So in this session, we have Imran Pasha. He is from Bangalore and he is majorly self-employed. And we have Dilip. His age is 28, and I want everyone, like after I will tell their name, right? I want them to introduce themselves. So Imran Pasha, you can come online and can tell about yourself. Like आप थोड़ा जो है अपने बारे में बता सकते हैं कि आप किस बैकग्राउंड से हैं एंड कहाँ से आप बिलोंग करते हैं नॉट तो ये मतलब दोनों लैंग्वेजेस में रहेगा इंग्लिश एंड हिंदी सभी को आता है isn't that? So that would be fine, I guess. Yes. So Imran Pasha, over to you. You can unmute yourself and you can speak. First of all, Assalamu alaikum to everyone. Can you listen me clearly, sir? Everyone? Actually, I am from Bangalore. I am age of 25. I am self-employed from Bangalore. And there's nothing to say about me. Everything, all they know. I'm also a member of SRK Association. Actually, I'm a big fan of SRK sir and Guru sir, especially. Actually, I was infected for 2 times. Let sir introduce everyone to everyone, and we'll talk about it later. Sir, please continue, sir. Sure. So इमरान पाशा जी जो है मतलब दोनों संक्रमित थे मतलब 2020 और 2020 में दोनों बार जो हुआ था दोनों बार वो पॉजिटिव आए और दोनों बार एक फाइटर की तरह वो इस जंग से बाहर आए. And then we have Anu ma'am. So Anu ma'am, I just want you to give us like a छोटा सा intro about yourself. Okay. I think all of you can hear me, right? Okay. So very good afternoon to everyone, and thank you for Neha. Thank you, Neha, for inviting me. Actually, it's like my name is Abhijini. I'm a science teacher in Eklavya School of Bangalore, and I'm married. I'm mother of 2 kids. That's all. And we'll talk later. Thank you all. And we have Dhanya over here. तो धन्या आप अपना इंट्रोडक्शन दे. Hello, hi. I'm Dhanya. I am in Bangalore. I am doing my engineering in TMS College of Engineering. Yeah, that's my introduction. Awesome. And we have Mr. Arun. So, sir, आप भी अपना एक बार इंट्रोडक्शन दे दीजिए. Okay, thank you, Pranav. And I think this is a great platform. और जितने भी लोग अभी कोरोना से ठीक हो गए हैं उन सब के जो अनुभव हैं उसको शेयर करने के लिए एक बहुत बड़ा माध्यम है. मैं अरुण हूँ और मैंने 20 साल इंडियन एयरफोर्स में एज अ एयर वॉरियर काम किया है और उसके बाद मैं अब फिलहाल लेक्चरर हूँ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक औराद में जो बीदर डिस्ट्रिक्ट में है. इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में मैं लेक्चरर हूँ. That's my introduction. Thank you, Pranav. Thank you so much, Arun sir. And we have Dilip Jain. So Dilip Jain, आप अपना एक बार इंट्रोडक्शन दे सकते हैं सभी को. मैं दिलीप जैन हूँ बेंगलोर से. एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ.
तो मेरे को एक्चुअली 2 दिन तो ऐसे खांसी आई थी। हेलो, सुन रहे हो सब? हाँ हाँ बोलिए भाई। दो दिन तो ऐसे बाद में 2 दिन के बाद ऐसे दो दिन के बाद वैसे मैं एडमिट हो गया था कृष्णा हॉस्पिटल में। तो रात को 11 बजे मैं परेशान हो गया था, सांस लेना बंद हो गया था मेरा। तो फिर मैं उधर जाके एडमिट हुआ। फिर 2 दिन तो आईसीयू में था। उसके बाद नॉर्मल जनरल वार्ड में लेके आए थे मेरे को। फिर मैं 8-10 दिन तो हॉस्पिटल में था, तो नॉर्मल होकर वापस आ गया था। हेलो जी हेलो। जी दिलीप। तो आप देख ही सकते हैं कि दिलीप जी जो है मतलब वो भी उनको थोड़ा कोरोना थोड़ा एक्सट्रीम लेवल पे हुआ था, ऑक्सीजन की कमी के कारण उनको हॉस्पिटल में भी एडमिट किया गया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी कोविड फाइटर्स का SRK फैंस एसोसिएशन बैंगलोर की तरफ से तहे दिल से स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सुरक्षित रहें, खुश रहें, और ये कोविड से जो भी मतलब आपने फेस किया है, जो चैलेंजेस आपने फेस किया है, वो सब हमको आप बताएं, ताकि ये एक माध्यम की तरफ से हम लोगों को ये पॉजिटिविटी फैला सके। क्योंकि आजकल जब भी आप न्यूज़ खोलते हैं तो बस यू कैन सी दैट ओके, हर जगह नेगेटिविटी नेगेटिविटी नेगेटिविटी। तो इस माध्यम के तहत हमने सोचा कि चलिए अब हम एक कदम उठाते हैं ताकि लोगों को ये पता चले कि हाँ, कोविड से रिकवरी भी पॉसिबल है, एंड रिकवरी भी पॉसिबल है, एंड वी हैव दीज फाइटर्स अमॉन्ग अस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हार्डली सभी को वेलकम है सार के फैंस एसोसिएशन बैंगलोर की तरफ से। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहेगा कि मतलब जब ये आपको स्टार्ट हुआ कैसे, सबसे पहले तो कैसे स्टार्ट हुआ और क्या क्या जो सिम्टम्स है वो आपने देखे। मतलब जब ये स्टार्ट हुआ, कोविड स्टार्ट होने से पहले, आपके रिपोर्ट आने से पहले कि आप पॉजिटिव हैं, तो उससे पहले क्या क्या जो है सिम्टम्स आपको लगे कि अच्छा कि ये मेरे पहले सिम्टम्स हैं करके। तो अनु मैम, आप बता सकते हैं कि क्या क्या जो है आपने सिम्टम्स आपने फेस किए। Yes, yes, yes. Actually, for me, mail had fever. My mail had. Yeah. Okay. Can you hear me now? Okay, so actually our maid had that symptoms. She was not feeling well. She was having fever and all. So that time I had the doubt. Maybe we also check for COVID. So after that only we both checked them. Our maid as well as myself, we both checked together and we became positive. We were asymptomatic actually, but she had a little bit of fever and all. For me, I was, by the grace of God, I can say I was like almost that normal. For me, I'm a asthma patient actually. So like only thing that came to my mind, how will I cope up with that asthma? I know how the breathing difficulty, like it's my I have inhalers with me. So I know the difficulty. So I had that suddenly the first time I had that fear in my mind, but only for that first day. After that it went over. So like I was asymptomatic, so I cannot say much about that. But fatigue was there. Fatigue was the only thing I can say. आपको क्या क्या सिम्टम्स आए थे। आप अनम्यूट कर सकते हैं एक बार। Can't hear. Actually. किसको? हाँ, आपको आपको अरुण जी, आपको क्या क्या जो है सिम्टम्स आए थे सर। ओके ओके ओके। एक्चुअली ये करीब 1 महीना पहले, यानी कि 12 अप्रैल को
मेरी वाइफ को हल्का को कुछ बुखार वगैरह लगा, बुखार एंड बॉडी पेन। तो हमने पहले एक लोकल यहाँ पे डॉक्टर को दिखाया, तो उसके कुछ इंजेक्शन वगैरह उन्होंने दिए थे, तो 2 दिन थोड़ा सा आराम हुआ। उसके बाद उनका पूरा बॉडी पेन शुरू हो गया, और बॉडी पेन एंड पूरा पीठ में दर्द, कंप्लीट बॉडी पेन एंड हल्का सा बुखार, और साथ ही साथ उनका टेस्ट एंड स्मेल दोनों जा चुके थे। तो बिल्कुल हमें तो लगा कि ये कोरोना के ही लक्षण है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर भी मैंने अपने फ्रेंड से वगैरह से डिस्कस करके यहाँ पे एक डॉक्टर सुवीन है, डॉक्टर सुवीन सर, डॉक्टर सुवीन पाटिल सर, विक्रम नर्सिंग होम, वहाँ पे जाके हमने दिखाया। तो उन्होंने पहले तो कहा कि हम तीनों अपना आरटीपीसीआर करवा लें, लेकिन आरटीपीसीआर का क्योंकि रिपोर्ट 2-3 दिन के बाद आता है, तो तुरंत उन्होंने कहा कि एक आप HRCT करवा लीजिए वाइफ का। और क्योंकि प्रबोध मेरा बेटा 18 साल का है, उसको भी हल्का सा खांसी वगैरह आ रहा था, तो उसको उन्होंने बोला कि अभी इसको तो ज़्यादा कुछ की ज़रूरत नहीं है, तो कुछ उन्होंने टैबलेट्स वगैरह लिख के दे दिए उस समय। और मिसेस का हमने एक तो HRCT करवाया, और उसके बाद कुछ ब्लड के भी चेक्स करवाए। ब्लड चेक्स ऑलमोस्ट नॉर्मल थे, लेकिन HRCT में 1% यानी कि 1 स्कोर आया था आउट ऑफ 25। तो डॉक्टर सुविन ने कहा कि मैं इनका कोविड का जो है डिटेल्ड अभी इनका गोलियां शुरू कर देता हूं, आप शुरू कर लीजिए, और आरटीपीसीआर का जैसे ही रिपोर्ट आता है मेरे को आके दिखाइए, कुछ गोलियां अगर चेंज करनी है तो चेंज कर दो। और एक्चुअली क्या हो गया कि हम तीनों का ही पॉजिटिव आ गया मंडे, यानी कि हमने 17 को दिया था, 18-19 मंडे को हम लोगों का तीनों का पॉजिटिव आ गया। और मिसेस का हाल तो काफी खराब हो चुका था, मतलब पूरा बॉडी पेन था, और स्मेल एंड टेस्ट तो जा चुका था। और मंडे से मुझे और मेरे बेटे को भी बॉडी पेन शुरू हो गया, और हल्का हल्का सा बुखार भी शुरू हो गया। तो ये करीब सिलसिला 4 दिन चला। एंड उसके पहले मैंने हमारे यहाँ पे डॉक्टर महेश बिरादार साहब हैं, उनसे मैंने बात किया कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा कि वो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आप लोगों को मैं कुछ गोलियां SMS करता हूँ। वो एक 6-7 गोलियां उन्होंने किया, जिसमें डोलो एंड एक डॉक्सी है, देन आइवरमेक्टिन, देन लिवोसेट्रिजिन, देन मॉन्टेल्यूकास्ट, जिंक सल्फेट एंड एक विटामिन C। ये कुछ उन्होंने गोलियां हमें लिख के दी, और हम लोगों ने तुरंत इन गोलियों को मैंने मंगा लिया और हमने शुरू कर दिया, तीनों ने सेम गोलियां शुरू कर दी। और हम लोगों ने पूरा एक मन बना लिया कि कुछ भी हो जाए हॉस्पिटल नहीं जाना है, घर में रहना। और क्योंकि मैं और मेरी मिसेस पहले से ही कुछ पिछले 2 साल से ऑलमोस्ट प्राणायाम वगैरह कर रहे हैं, तो एक हल्का सा एक कॉन्फिडेंस था कि हम प्राणायाम वो सब के जरिए अपने आप को सुधार लेंगे। और हुआ भी ऐसा ही। बाद में हमको करीब मिसेस का ऑलमोस्ट बॉडी पेन वगैरह तो गया, लेकिन फिर तीनों का कफ शुरू हो गया, कफ आना। ये करीब 3 दिन के बाद, मंडे यानी कि वेडनेसडे से हम लोग का शुरू हुआ, और थर्सडे आप लगा सकते हो ऑलमोस्ट वेडनेसडे थर्सडे कफ काफी जम जाता था, और सवेरे उसको बलगम बाहर निकालने में इतनी तकलीफ होती थी, कई बार ऐसे लगता था कि सांस रुक सा गया है। तो दैट वाज द पोजीशन। और लेकिन हम लोगों ने एक चीज बाकायदा किया कि 6-7 बार स्टीम लेते थे, वो भाप पानी का, और गार्गलिंग करते थे 4-5 बार। तो ये हम तीनों ने कंटिन्यू रखा। और लकीली हमारे कुछ फ्रेंड्स वगैरह यहाँ पे उन्होंने हमें खाना वगैरह पहुंचाने का भी इंतजाम किया। तो हम करीब 15 दिन घर से बाहर बिल्कुल निकले नहीं। बाहर से उन्होंने खाना, फ्रूट्स, इवन जो दवाइयाँ हैं वो सब भेजी हैं। और फिर उसके बाद धीरे धीरे से ये हम लोगों का 2 दिन हमें बहुत दिक्कत हुआ। सवेरे जो कफ बाहर निकालने के लिए बहुत प्रेशर पड़ता था, छाती भी दर्द करता था, और कई बार तो ऐसे लगता था कि पता नहीं ऐसा
सांस वापस आ सकता है या नहीं आ सकता। लेकिन फिर भी हम लोग घबराए नहीं और बिल्कुल भगवान पे और गुरुजी पे भरोसा रख के हम तीनों ने, प्रबोध को इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ था, लेकिन मुझे हुआ और मिसेस को बहुत ज़्यादा दिक्कत। एक दिन तो मिसेस ऑलमोस्ट चुपचाप आधे घंटे से ज़्यादा चुपचाप बैठी रही, मतलब उनका जो बिल्कुल स्लो सांस ले रही थी। तो हमने एक दो बार सोचा भी कि शायद हमें इसकी ज़रूरत पड़ सकती है ऑक्सीजन की, लेकिन उसके बाद हमारे घर में वो ऑक्सीमीटर मैं लेके आया था, कंटिन्यू में ऑक्सीमीटर से मेजर करता रहा उनका, और बिलो 95 गया नहीं था, लेकिन एक दिन बिलो 90 उनका गया था सवेरे। बिलो 90 के बाद मुझे लिए थोड़ी सी घबराहट तो हो गई थी, लेकिन उसके बाद जैसे उन्होंने गार्गलिंग वगैरह किया, कफ वगैरह बाहर निकाल दिया, तो अगेन वो 95 तक आ गया। उसके बाद मुझे लगा कि चलिए अब वी कैन मैनेज इट। तो ऐसे करते करते देन मैनेज हो गया, एंड ऑलमोस्ट पिछले हफ्ते सभी का हमने फिर रीटेस्ट कराया और हम तीनों का अब नेगेटिव आ चुका है। एंड बस ये है, और कुछ अगर पूछना चाहें तो मैं शेयर करूंगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच अरुण जी। धन्य, आपने क्या मतलब जो है आपने फेस किया था जब आपको ऐसा लगा था कि आप या कोविड पॉजिटिव है? क्या सिम्टम्स जो हैं आपने फेस किए थे? Yeah, actually, I had my exams going on. So my first semester exams were going on. So we had to go and write it offline. There was no online mode conducted for exams. So after I went there, we had to sit like as arranged as roll numbers, obviously. So there it was fine. And after we came back, after 3 days, my friend texted me saying that she was tested positive, and she was sitting right next to me. So because as she told, then when she told me, I didn't have any symptoms or anything as such. I was like, no, I'm fine right now, so I did not go for a test and all. So after she told, after 3 days or something, I started feeling headache and I got a mild fever also. So I told my mom like, I have been my friend had texted me like this, and even I am feeling like this, so should we go for a test? So then we took immediate precautions, and we came and we got it tested, and it was tested to be positive. So then after that, we didn't panic as soon as we got to know anything about that it was tested positive and all. And even my mom and dad, they didn't, scare people. Like as soon as you get, people actually get very scared and get panicked. I think we should not do that. So my parents also were like quite chill, and they were like, no, nothing will happen. We'll fight it together and everything. So then I was at home for 15 days. I've taken medications which the doctor had told me to take. And my mom had all the, right, the veggies and all which we're supposed to eat during those times. So my mom was always like, right, she couldn't come and sit next to me and all, but we used to always spend much time together. We used to have a nice time together, not sit and be like, oh no, I'm not well at home. And even she used to not be sitting sad there. We used to sit and talk a lot. We used to make videos together, and that's how I said. And yeah, and I used to take good nutrition also. So because of that, it helped me come out of it very fast and soon. It helped me a lot. Like, yeah. दैट्स रियली ऑसम एक्चुअली धनिया। सो अब जल्दी रिकवर हो गए, बहुत अच्छी बात है। तो आई विल बी लाइक, मैं पूछना चाहूंगा दिलीप जैन। तो दिलीप जैन, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा इसमें? मतलब क्या जो है, मतलब सबसे पहले आपको ऐसा लगा कि हाँ, ये जो है मेरे पे सिम्टम्स आए हैं मेरे पास, कि मतलब आपको ऐसा लगा कि थोड़ा बहुत डिफिकल्टी हो रहा है ब्रीदिंग में, या थोड़ा बॉडी पेन? क्योंकि सभी से जो हम लोग ने पूछा है, तो सभी से मैक्सिमम जैसे अगर हम देखेंगे तो टायर्डनेस, वीकनेस, कफ, कोल्ड, एक तरह से डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, बॉडी पेन, ये सभी को आ रहा है, isn't it? तो अभी मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि सबसे पहला, जैसे आपने बताया कि मतलब अभी ये आपको सिम्टम्स हो गए, एंड देन आपने मतलब डॉक्टर को कंसल्ट किया कि सेल्फ मेडिकेशन जो है आपने किया फॉर अ वाइल? मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता चला कि हाँ, अभी मैं पॉजिटिव, ठीक है, एंड देन आपने तुरंत ही डॉक्टर से जाके कंसल्ट किया
कि अभी क्या करना है क्या नहीं करना है, या देन आपने थोड़ा सा जो है घरेलू नुस्खा जैसे हम लोग बोलते हैं सेल्फ मेडिकेशन, तो आपने वो की? जी दिलीप। दिलीप आपकी आवाज नहीं। हाँ अरुण सर आप बोल सकते हैं इसका आंसर, क्योंकि दिलीप जी का आवाज नहीं आ रहा है। इसमें पहले तो जैसे मुझे पता चला ऑलमोस्ट वाइफ को कोरोना के ही पूरे लक्षण थे वो, तो हमने सोच लिया था कि घर में ही हम अपने आप को आइसोलेट करके जो भी घरेलू नुस्खे हैं जैसे स्टीम लेना, गार्गलिंग करना, ओके, देन हल्दी, हल्दी के साथ गर्म पानी लेना, तो ये सब हमने शुरू किया था। लेकिन मैंने अपने कलीग्स वगैरह से डिस्कस किया तो उन्होंने कहा कि एक बार आप बेटर होता अगर किसी एक अच्छे डॉक्टर को आप दिखा देते। तो उनकी राय सुनकर यहाँ पर डॉक्टर सुवीन है, उनको जाके मैंने दिखाया और हम तीनों का तीनों के बारे में बताया। तो उन्हें हम तीनों को पहले तो रिकमेंड किया कि आप RT-PCR टेस्ट करवा लीजिए, क्योंकि वाइफ का सबसे ज़्यादा दिक्कत था, तो उन्होंने वाइफ को गोलियां मेडिसिन वगैरह लिख के दे दी हैं। और उसके बाद उनका HRCT वगैरह कराया, और सेम डे सवेरे मैंने यहाँ के डॉक्टर महेश बिरादार सर, जो जिनको मैं जानता हूँ, उनको मैंने फ़ोन करके पूछा था। तो उन्होंने कहा था कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप को मैं कुछ दवाइयाँ SMS करता हूँ, आप जाके घर पे ही इसको ले सकते हैं और आराम हो। तो ये हमारे बारे में। फेयर इनफ। तो इमरान, जैसे कि आपने बताया कि आप 2 बार जो है मतलब कोविड पॉजिटिव रह चुके हैं, इवन इन 2020 और 2021 में भी, ठीक है, तो दोनों बार जो है आपको कोविड पॉजिटिव हुआ है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कैसे, मतलब एक तरह से आपका इमीडिएट रिएक्शन क्या था उसके लिए, मतलब जैसे ही आपको पता चला कि हाँ मैं कोविड पॉजिटिव, और क्या आप मतलब एक तरह से मेंटली प्रिपेयर्ड थे? वर यू मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दिस, लाइक ओके कि मेरे को कोविड पॉजिटिव हो गया? बिकॉज दिस इज लाइक अ वेरी, अगर आप देखेंगे तो मेंटली प्रिपेयर्ड होना भी बहुत जरूरी है। कि अभी क्या हो रहा है, मतलब हर जगह अगर आप देख रहे हैं तो कोविड एक ऐसी चीज हो गई है कि मतलब सभी को डर लग रहा है, isn't it? सो द पीपल हु आर गेटिंग अफेक्टेड उनको ये लग रहा है कि यार अब क्या होगा करके। सो आप कैसे, मतलब इसको आप कैसे मेंटली प्रिपेयर्ड थे, कैसे मतलब आपने ये हैंडल किया इस सिचुएशन को? Sir, actually, there are two Imrans. Which are you talking, sir? There is Imran Imran, Khan and you on Imran Pasha. okay, okay. Yeah. Thank you Imran for is our SRK association member itself. So okay, okay. I know him, sir. He's my brother-in-law's friend. Actually, Rahib is my brother-in-law. Actually, sir, मेरे को हिंदी में बात कर सकता हूँ ना? Because everyone will get to know, each and everyone. Actually, sir, मेरे को 2 times कोविड हुआ था। फर्स्ट टाइम तो मैं प्रिपेयर नहीं था, सेकेंड टाइम आई वाज रियली वेरी प्रिपेयर्ड, बिकॉज मेरे को अकेले को नहीं हुआ था कोविड, मेरे वाइफ को भी साथ में हुआ था। उन वो आके प्रेग्नेंट थे तभी, ऑलमोस्ट 6 मंथ प्रेग्नेंट थे, ठीक है। तो इट्स नॉट लाइक एनी पैनिकिंग सिस्टम और एनीथिंग, यू शुड नॉट पैनिक, ओके सर। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट आपको सिखाना चाहिए